नेक्स्ट है अ रैंक सम टेस्ट और द मैन विटनीज यू टेस्ट. The sign test for comparing two population distribution ignores the actual magnitude of the paired observation and thereby discard information that would be useful in detecting a departure from the null hypothesis. A statistical test that partially circumvents this loss by utilizing the relative magnitude of the observation was proposed by Mann and Whitney and is equivalent to a test proposed independently by Wilcoxon. Rank sum test is a whole family of tests. Here we shall discuss only one of the type, the Mann-Whitney U test. With this test, we can test the null hypothesis mu1 equals to mu2 without assuming whether the population sampled have roughly the shape of normal distribution. This test helps us to determine whether two random samples have came from identical populations. If it is true that the sample have came from the same population, it is reasonable to assume that the mean of the rank assigned to the values of the two samples are more or less the same. The alternative hypothesis is that the means of the population are not equal, and if this is the case, most of the smaller rank will go to the value of one sample, while most of the higher ranks will go to those of the other sample. The test of the null hypothesis that the two samples came from identical population may either be based on rank 1, the sum of the rank of the values of first sample, or the rank 2, the sum of the rank of the value of the second sample. It may be noted that in practice it does not matter which sample we call sample 1 and which we call sample 2. If the sample size are n1 and n2, the sum of r1 and r2 is simply the sum of first n1 plus n2 positive integer, which is known to be n1 plus n2 n1 plus n2 plus 1 divided by 2. This formula enables us to find R2 if we know R1 and vice versa. When the use of the rank sum was first proposed as a non-parametric alternative to the two-sample t-test, the decision was based on R1 or R2. But now the decision is usually based on either of the related statistics. Here statistics is U1 equals to N1 N2 plus N1 N1 plus 1 divided by 2 minus R1. U2 equal to N1 N2 plus N2 N2 plus 1 divided by 2 minus R2, where N1 and N2 are the size of the sample and R1 and R2 are the rank sum of the corresponding samples. For small samples, if both N1 and N2 are less than 10, some statistics say 8, special table must be used. And if U is smaller than the critical value, H0 can be related to the standard normal curve by statistics. V equals to U minus N1 N2 divided by 2 under the root N1 N2 N1 plus N2 divided by 12. In using this statistic, it is unimportant whether the large or small value obtained from the formula is used. The value of Z will be numerically equal, but opposite in signs. Note that tied observations are again given the mean of the common ranks. Here a question. 24 applicants for a position are interviewed by 3 administrators and rated on a scale of 5 as to suitability for the position. Each applicant
each applicant is given a suitability score which is the sum of the three number. Although college education is not a requirement for the position, a personal director felt that it might have some bearing on suitability for the position. Raters made their rating on the basis of individual interviews and were not told the educational background of the applicant. 12 of the applicants had completed at least 2 years of college. Use the Mann-Whitney's use test to determine whether there was a difference in the score of the two groups. Use a 0.05 level of significance. Group A had an educational background of less than 2 years of college, while Group B had completed at least 2 years college. आपको डाटा दिया गया है, सूटेबिलिटी स्कोर दिया गया है ए और बी द्वारा, जो कि है 7, 11, 9, 4, 8, 6, 12, 11, 9, 10, 11, 11 फॉर ए, एंड बी के लिए है 8, 9, 13, 14, 11, 10, 12, 14, 13, 9, 10 एंड 8. अब इसके अकॉर्डिंगली आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. सबसे पहला काम है आपका डाटा की रैंकिंग करना. तो डाटा की रैंकिंग करने के लिए आपको ए और बी का डाटा साथ में लिखना पड़ेगा, ए एंड बी. अब यहाँ सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है, उस वैल्यू को ढूंढिए और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में इसे प्लेस करते जाइए. तो सबसे पहली वैल्यू है 4, नेक्स्ट है 6, 7, 8, 9 2 टाइम्स है तो 9 को इस तरीके से लिख दीजिए. 10, 11 आपके पास 4 टाइम्स है तो 4 टाइम 11 लिख दीजिए. इसके बाद आपके पास एक रैंक बचा, वो है 12. नेक्स्ट केस में भी आपने इसी तरह से अपना डाटा अरेंज करना है. तो सबसे पहली वैल्यू यहाँ आएगी आपके पास 8 आई है तो 8 के सामने वाले केस में 8 2 टाइम्स है तो लिख दीजिए. 9 के केस में भी 2 है, 9 9. 10 भी 2 टाइम्स है, 11 1 टाइम है, 12 है, 13 13, 14 14. आपका डाटा इस तरह से अरेंज हो गया. अरेंज करने के बाद अब आपने इसकी रैंकिंग करनी है, रैंक्स देने अब आपने. तो रैंक्स देने के लिए यहाँ लिखिए रैंक्स. 4 को दीजिए 1, 6 को 2, 3, 8 8 8 3 टाइम्स है तो यहाँ कीजिए 4 5 6 7 8 9 10. 4 टाइम्स 9 है तो इसे 7 8 9 10. इसके बाद 11 12 13, 11 12 13, 14 15 16 17 18, 90 20. रैंकिंग आपकी चलती जाएगी जब तक आपका डाटा खत्म नहीं हो जाता. अब आपके पास टोटल रैंक्स आए हैं 24. 24 के बाद अब आपने यहाँ कॉमन रैंक्स निकालने हैं. कॉमन रैंक्स के लिए आप क्या करोगे, आप निकालोगे 1 2 3, यहां तक तो सेम हो गया. अब 4 5 6 इसका एवरेज लेंगे हम. तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज इक्वल टू 5. तो कॉमन रैंक आया इसका 5. नेक्स्ट है आपका 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 4. तो यहां आपका रैंक बनेगा 8.5. यहां आपका कॉमन रैंक आया 8.5. एवरेज करनी है आपने, एवरेज करते हुए आप अपने डाटा को लिखते जाओगे. नेक्स्ट केस में आपके पास है 11 12 13 तो इसका एवरेज आएगा 12 का. यहाँ आपके पास 5 आइटम्स है तो एवरेज होगी 16 की. 1 2 3 4 5 16 आ गया. इसके बाद आपके पास एवरेज आएगी 90 और 20 की 19.5, 21 22 की 21.5. एवरेज करते जा रहे हैं हम. ये आपके पास कॉमन रैंक्स आ गए. अब आपने क्या करना है, आपने रैंक्स का कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन करना है. आप लिखोगे रैंक्स ए बी. अब आपने देखना है ए वाले केस में आपके पास कितने
डाटाज है। यहाँ आपके पास एक ही डाटा है और उसको आपने रैंक दिया है 1, तो 1। बी में कोई डाटा नहीं है तो इसके बीच में कुछ नहीं लिखोगे, इसे खाली छोड़ दोगे। नेक्स्ट है आपके पास 6, यहाँ आपने 2 देना है। 7 वो 3, बी वाले केस में कोई नहीं है इसलिए वो खाली जा रहा है। अब आपके पास 8 के लिए रैंक है आपका 5। 5 का मतलब 8 के केस में ए की वैल्यू होगी 5 और बी के केस में होगी 5 और 5। 2 बार 8 है, 5 और 5 10। नेक्स्ट आपने ऐसे ही करना है। 9 को आपने दिया है 8.5, 8.5 हो गए 17, दोनों को टोटल किया, यहाँ पे भी आपके पास 17 आएगा। नेक्स्ट केस में आपके पास 10 है, 10 की वैल्यू यहाँ 12 है तो 12 लिख देंगे, 12 12 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट केस में 11 के 4 टाइम्स है, मतलब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 64 और यहाँ 16 ही रहेगा। दूसरे केस में अगले वाले में आपके पास 9.5 साढ़े 19 दोनों साइड आ जाएगा, 19.5 19.5 दोनों तरफ आ गया। अब आपके पास ए वाली सीरीज में कोई डाटा नहीं बचा है, बी वाली सीरीज में डाटा बचा है, तो 21.5 2 आइटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू बनेगी आपकी 43। नेक्स्ट केस में आपके पास 2 वैल्यूज है, 23.5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो वो बनेगा 47। इस स्टेप के बाद अब आपको अपने रैंक्स का टोटल करना है, तो आप लिख लीजिए यहाँ टोटल और ए के रैंक और बी के रैंक का टोटल निकाल लीजिए। यहाँ आपकी वैल्यू बनेगी 123.5 और दूसरे केस में बनेगी 176.5। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद अब आप चलोगे अपने फॉर्मूला पे। यहाँ आपके पास U1 का फॉर्मूला था N1 N2 प्लस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R1। अब यहाँ आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर देखना है अपनी U1 की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ N1 एंड N2, N1 का मतलब है आपके पास N1 वाले मतलब रैंक ए में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो, तो यहाँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिसिपेंट्स है तो N1 की वैल्यू हो गई आपकी 12। N2 की वैल्यू सेकंड वाले केस में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो N2 की वैल्यू भी हुई 12। अब आपने अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर देखना है। 12 इंटू 12 प्लस 12 ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। R1 की वैल्यू आपकी रो 1 की वैल्यू आई है 123.5। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो ये हो गया 144 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 123.5। 144 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 123.5। 144 प्लस ये हो जाएगा आपका 78 माइनस 123.5। अब इन दो को प्लस कीजिए और उसमें से माइनस करके एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये हुआ 222 माइनस 123.5 इक्वल्स टू 98.5। U1 की वैल्यू आई आपके पास 98.5। अब आपने निकालनी है U2 की वैल्यू। U2 में आपके पास फॉर्मूला होगा N1 इंटू N2 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R2। N1 N2 आपके 12 इंटू 12 ये 144 ही हो जाएगा। फिर से N2 ये भी आपकी वही वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय ये आएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस R2 की वैल्यू है आपकी 176.5। इस रैंक का टोटल आपके पास आया है 176.5। तो इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर कितना आता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 45.5। U2 की वैल्यू आई 45.5। अब आपने अपना Z स्कोर निकालना है। Z स्कोर निकालने के लिए आप करोगे
यहाँ आपका फॉर्मूला है u माइनस n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n1 इंटू n2 ब्रैकेट स्टार्ट n1 प्लस n2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 12। ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ आपने u1 या u2 में से किसी एक की वैल्यू उठानी है, या तो u2 की ले लीजिए या फिर u1 की ले लीजिए। हम u2 की वैल्यू लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी छोटी है कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम u2 की वैल्यू ले रहे हैं। u में हमने u2 की वैल्यू पुट की, माइनस n1 n2 है आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 2 अंडर द रूट 12 इंटू 12 12 प्लस 12 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 12। तो आपकी v की वैल्यू आएगी 45.5 माइनस 2 672 अंडर द रूट 144 12 और 12 24 माइनस 1 23 होल डिवाइडेड बाय 12। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी माइनस 26.5 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 1.916। ये आपकी वैल्यू है माइनस 0.096। यहां तक सॉल्व होने के बाद ये आपकी जी स्कोर आ गया। जी स्कोर आने के बाद अब आपने चेक करना है अपनी क्रिटिकल वैल्यू से अपने इस वाली वैल्यू का कंपैरिजन करके देखना है कि दोनों में से कौन बड़ी है। आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रहती है वो रहती है 1.96 पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्रिटिकल लेवल पे आपके पास वैल्यू रहेगी प्लस माइनस 1.96। आपकी वैल्यू आ रही है 0.096। तो ये क्रिटिकल वैल्यू बड़ी है, आपकी वाली वैल्यू छोटी है। तो इस केस में आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो होगी एक्सेप्ट। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, क्योंकि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है। कम होने पे आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, जो कि आपने रखी थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्कोर ऑफ द टू ग्रुप्स।